Full News Headquarters. Full News Headquarters. السلام علیکم. بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید. میں ہوں رافع مرزا. میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا ساجد. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. ٹاپ سٹوریز میں آج آپ جان سکیں گے کپتان کے سوالات، پی ڈی ایم کی بوکھلاہٹ، امپورٹڈ حکومت کا یو ٹرن اور ڈالر کو لگ گیا ریورس گیئر. تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ملک گیر احتجاج، کارکنان کا الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر دھرنا، مختلف مقامات پر سیکیورٹی الرٹ. اسلام آباد کے F9 کو نو گو ایریا بنا دیا گیا. رکاوٹوں کے باوجود پی ٹی آئی کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت. پی ٹی آئی رہنما اور کارکنان کے چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں نعرے. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے. چھ کارکن الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر جمع ہوئے اور نعرے لگائے. کل تک نہ اور آج ہاں. چند ماہ قبل انتخابات کے لیے تیار نہ ہونے والے الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے مکمل تیار ہونے کا اعلان کر دیا. ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات کسی بھی وقت ہوں پوری طرح تیار ہیں. کمیشن نے حلقہ بندیوں کا کام مکمل کرنے کے ساتھ تمام اعتراضات دور کرنے کا بھی اعلان کر دیا. حلقہ بندیوں کا کام مکمل، تمام اعتراضات بھی دور. الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے تیاریاں مکمل کر لی. سرائے الیکشن کمیشن نے دائرے کے مکمل ریڈی ہونے کی تصدیق کر دی. سرائے کے مطابق تمام قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی حلقہ بندیوں کو فائنل ٹچ دے دیا گیا. جہاں سے بھی اعتراض اٹھا جائزہ لینے کے بعد اسے دور کیا گیا. انتخابات کسی بھی وقت ہوں، الیکشن کمیشن پوری طرح تیار ہے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں بھی 4 اگست تک حلقہ بندیاں مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی. عمران خان کی مقبولیت سے خوفزدہ حکومت ملک کے تمام مسائل بھلا کر خان کو گیم سے آؤٹ کرنے پر تل گئی ہے. وفاقی کابینہ نے عمران خان کی نااہلی کا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی. کابینہ اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے خلاف ڈکلیریشن سپریم کورٹ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کی جو فیصلہ ہے اس میں واضح طور پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہوئی ہے. حکومت پاکستان جو ہے وہ اس بات کی پابند ہے کہ ایک ڈکلیریشن الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ سپریم کورٹ بھجوانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے. جن اکاؤنٹس کے ذریعے یہ پیسہ آیا جن کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا اور ذاتی ملازمین کے نام کے اوپر یہ پیسے منگا کر اس کو کیا گیا، اس کے اوپر کابینہ نے یہ ہدایت جاری کی ہے FIA کو، انٹیریئر منسٹری کو، کہ اس کے اندر جو قانون اور آئین کے مطابق اس کے اوپر ایک مکمل غیر جانبدار انڈیپینڈنٹ انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو. وہ تمام جو مالیاتی ادارے ہیں، جو تحقیقاتی ادارے ہیں، ان کے ساتھ مل کر FIA کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے آج کہ وہ فوری طور پر اس کے اوپر انکوائری سٹارٹ کرے. وہ تمام لوگ جو اس کے اندر اس جرم کے اندر شامل ہیں اس کے اگینسٹ بھی انکوائری آج سے شروع کر دی گئی ہے کابینہ کے فیصلے کے مطابق. بوکھلاہٹ کا شکار پی ڈی ایم اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی. پی ڈی ایم نے عمران خان کے خلاف نااہلی ریفرنس الیکشن کمیشن میں دائر کر دیا. درخواست میں موقف اپنایا کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے ملنے والے تحائف کو سالانہ گوشواروں میں شامل نہیں کیا. کسیانی بلی بننے والی پی ڈی ایم بوکھلاہٹ کا شکار. پی ڈی ایم نے عمران خان کی نااہلی کے لیے ریفرنس الیکشن کمیشن میں دائر کر دیا. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے ملنے والے تحائف کو سالانہ گوشواروں میں شامل نہیں کیا تھا بلکہ الیکشن کمیشن میں غلط ڈکلیریشن جمع کرائی. کیا اثاثوں میں غلط بیانی کرنے سے عمران خان کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے؟ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت کارروائی کرتے ہوئے نااہل قرار دینے کی استدعا کی گئی. نااہلی ریفرنس مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رہنجا نے الیکشن کمیشن میں دائر کیا. مبدوعہ فنڈنگ پر ریفرنس دائر ہی نہیں ہوگا. فواد چودھری نے پیش گوئی کر دی. بول نیوز کے پروگرام میری جنگ میں رہنما پی ٹی آئی نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن کو پی ڈی ایم کا ساتھی قرار دیا. پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو نشانے پر لیا اور کہا کہ ممنوعہ فنڈنگ کے فیصلے کے بعد یہ سارا دن پریس کانفرنسز کرتے رہیں گے اور واضح کر دیا کہ عمران خان کو کوئی سیاست سے باہر نہیں کر سکتا.
तो कोई इसकी कानूनी तौर के ऊपर तो इसका कोई बड़ा जो है वो इम्पैक्ट नहीं है। लीगली तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये बाजार अभी जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, वहाँ से सेटिसाइड हो जाएगा सारा। फैसला मुझे जाएगा ही नहीं, इसको इस नौबत ही नहीं आएगी रेफरेंस जाने की। असल में तो ये एक पॉलिटिकल गिमिक है, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो काम कर रहा है एज अ लॉन्ग आर्म ऑफ पीडीएम, जिसके पास 155 सीटें हैं नेशनल असेंबली में, उसको जिनके पास 84 सीटें हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता मामला। और ये तो बिल्कुल ऐसे बच्चों की एनआरओ के लिए पार्लियामेंट को एक बार फिर रबर स्टैम्प बना दिया गया। हुकूमत ने सेनेट से नैब तरमीमी बिल सानवी तरमीम बिल का बिल मंजूर कर लिया है। तहरीक इंसाफ ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। सेनेट बना मछली बाजार। सेनेट में कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरामीम का दूसरा तरमीमी बिल पेश। नैब का दूसरा तरमीमी बिल वजीर मुमलिकत कानून मलिक शहादत आवान ने पेश किया। सेनेट में पीटीआई का बिल पेश करने पर एहतजाज और नारेबाजी। Is it opposed? सर प्लीज सुने, अभी आप एक करे ना, सुने सर। शिबली फराज बोले, ये एहतसाब का अमल खत्म करने के लिए कानून साजी की जा रही है। ऐसे बिल जिसमें के नैब की कवानीन ये डिफाइन करेंगे, आप कुछ तो सोचें चेयरमैन साहब कि इस हाउस को नहीं बनाया जा सकता, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि एक ऐसे कानून के लिए जो कि बुनियादी तौर पे करप्शन को तकरीबन जायज कर दे। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि जल्दबाजी में इतनी अहम कानून साजी करना और ओपोजिशन को ना सुनना हरगिज दुरुस्त नहीं है। और नैब एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर एक कंसेंसस चाहिए, एक प्रॉपर डिस्कशन और डिबेट चाहिए, और एक मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो हासिल करना चाहिए। सेनेटर मुश्ताक अहमद के इजहार ख्याल पर हुकूमती अरकान के चोर चोर के नारे, जवाब में पीटीआई के अरकान के भी जवाबी नारे। जी मुश्ताक साहब जी। सेनेट में ओपोजिशन अरकान ने नैब तरमीमी बिल की कॉपियां फाड़ दी। पीटीआई अरकान का चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव, बिल की कॉपियां चेयरमैन सेनेट की जानिब उछाल दी। पीटीआई का बिल की रेटिंग के दौरान ऐवान से वॉकआउट। पीटीआई का ऐवान बाला इजलास से वॉकआउट। हुकूमत ने सेनेट से नैब तरमीमी बिल सानवी तरमीम का बिल आसानी से मंजूर करवा लिया। पहले यकीन दहानी और बाद में हुकूमत का यू टर्न। हुकूमत ने 1 साल के लिए ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम वापस ले ली है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने ऐलान कर दिया, कहा कि नून लीग की क़यादत और मरीम नवाज़ के पुरज़ोर इसरार पर फिक्स टैक्स स्कीम ख़त्म कर रहे हैं। 1 साल के लिए ताजरों पर बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स मौखर किया जाता है। तमाम ताजिर बरादरी की मुतालबात के तहत बिलखुसूस नईम मीर साहब और इनकी तमाम साहब बरोज साहब और इनके तमाम साथियों के मुतालबात के तहत जो क़यादत से हिदायत मिली, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की मंशा, हमारी और दीगर क़यादत ख़ास तौर पर मरीम नवाज शरीफ की इसमें राय भी शामिल थी। हमने फैसला लिया है, और दस्तगीर साहब और मैं आज सारा दिन तकरीबन इस पर लगा के बैठे हैं। हमने फैसला लिया है कि ये फिक्स टैक्स के निज़ाम को इस पूरे साल के लिए मौखर करते हैं, ख़त्म करते हैं। ये हुकूमत ताजर दोस्त हुकूमत नहीं है। हुकूमत के फिक्स टैक्स खत्म करने के बावजूद भी ताजर हुकूमत से नाराज, कहते हैं कि इतना तो दुकान का किराया नहीं जितना टैक्स बिलों की मद में दे रहे हैं, बाकी टैक्सेस के खिलाफ भी रद्द अमल देंगे। हुकूमत के साथ मुज़ाकराती अमल किया, और इस मुज़ाकराती अमल में हमने पूरा दबाव हुकूमत पे डाला, और हमने आपका मुकदमा लड़ा, और आज आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सुरखरू हुई है। अगर ये यहाँ वापस लेते तो ताजरों का 17 तारीख को पूरे मुल्क में मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया गया था, अगर ये फिक्स टैक्स को ख़त्म ना किया जाता तो। पहले ही हम जितना टैक्स दे रहे हैं और मुख्तलिफ सूरतों में, ठीक है, लेकिन वहाँ पे पैसे तो लग नहीं रहे, ये तो ज़ाया हो रहे हैं पैसे। फिक्स टैक्स ख़त्म करने से कोई बेहतरी वाली सूरत हाल पैदा नहीं होगी, क्योंकि बिलों के अंदर टैक्सों की भरमार जो है, जब तक अब वो ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक बेहतरी नहीं आएगी। जिस शख्स ने भी ये राय दी वो इंतहाई गलत थी, और उसकी सोच गलत थी, क्योंकि गुलाम बनाया नहीं जा सकता आवाम को। जिस तरीके से वो फिक्स टैक्स लगाया है, इसका मतलब जबरन टैक्स। कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, लोगों के सब्र का पैमाना भी जवाब दे गया। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ गुलिस्तान जौहर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहरे की वजह से जौहर चौरंगी और जौहर मोड़ की तरफ से आने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई।
कराची में बिजली का बहरान दिन ब दिन बढ़ने लगा। लोड शेडिंग का अजाब, फिर भी बेहिस हैं हुक्मरान। अवाम का भी सब्र जवाब दे गया। गुलिस्तान जौहर में मुसलसल लोड शेडिंग लोगों के लिए अजाब बन गई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 और दीगर इलाकों में 14 से 15 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। हर घंटे के बाद 1.5 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। लोग एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन की वजह से जौहर चौरंगी और जौहर मोड़ की तरफ आने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का मुतालिबा था कि लोड शेडिंग फौरी तौर पर खत्म की जाए। लंबी छलांग के बाद डॉलर को रिवर्स गेयर लग गया। इंटरबैंक में कीमत ₹2.65 कम होकर 236 रुपए 15 पैसे पर आ गई है। ओपन मार्केट में $1 236 रुपए का हो गया है। गुज़िश्ता रोज ओपन मार्केट में डॉलर 229 रुपए पर बंद हुआ था। मुआशी माहिरीन का कहना है कि IMF की तरफ से किस्त मिलने के बाद दोस्त ममालिक से पैसे मिलने की भी उम्मीद है, जिसके बाद सूरत हाल में मजीद बेहतरी आएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हुकूमत जान ले के कौमी इदारों को फ़रोख्त करने के एजेंडे को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इक़दामात और कानून में तब्दीली को अदालत में चैलेंज करेंगे। पेशावर में तकरीब से खिताब में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। मीडियम का इत्तेहाद भी 12-11 जमातों का इत्तेहाद भी मुल्क में इस्लामी निज़ाम के लिए नहीं है जो हमारे मसाइल का हल। क्या इन्होंने गरीबों की जिंदगी में कोई इनकलाब आया? क्या इन्होंने गरीबों को हुकूक देने के लिए कोई कानून साजी की? क्या इन्होंने अदालती निज़ाम को बेहतर बनाया? पाकिस्तान को अगर बचाना है, यहाँ आईन की हुक्मरानी चाहिए, यहाँ अदल और इंसाफ की हुक्मरानी चाहिए। क्या इन दोनों सियासी जद्दों की लड़ाई गुर्बत के खात्मे के लिए, महंगाई के खात्मे के लिए, ये लोग कानून और आईन से अपने आप को बालातर समझते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।